So, hi everyone, and a very good evening to all of you, and welcome back once again to another session of PMI analysis from the Hindu. In this session, guys, we are going to do the PMI analysis, that is the pre-mains and interview analysis of all the important articles from today's Hindu newspaper. And do remember, after reading any particular article from any newspaper, you have to do the PMI analysis because PMI एनालिसिस के बिना किसी भी आर्टिकल को पढ़ना इज नॉट बेनिफिशियल फॉर यू, ऑलराइट, एंड फॉर दैट आई एम हियर फॉर यू. आई एम डूइंग ऑल द PMI एनालिसिस फ्रॉम ऑल द important articles from the Hindu newspaper. Alright, so let's begin with the session and let's talk about the very first article. And remember, there are very important articles today. बहुत सारे ऐसे articles हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा important है आज के newspaper में. Alright, so first article, it is time to let sleeping dogmas lie. This article talks about the prevalence of Hindi. This article talks about the prevalence of Hindi in India and जो हिंदी है वो किस तरीके से पूरे देश में आता जा रहा है और किस तरीके से प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है टू द नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल. ऑलराइट, सो जो बेसिक इशू है हम उसकी बात करेंगे जिसके बेसिस पे एग्जाम में आपके क्वेश्चन आ सकता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स टॉक अबाउट द प्रिवलेंस ऑफ हिंदी. जो हिंदी का प्रिवलेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, उसकी बात करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, imposition of Hindi names on various central government schemes and programs, like we have Swachh Bharat Mission, we have Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana. The non-Hindi speaking peoples do not understand the Hindi, do not understand the meaning of these government schemes because they do not know how to speak Hindi, right? Then we have a parliamentary committee's proposal which provided recommendation to make the use of Hindi mandatory for MPs and all the union ministers. Making Hindi a compulsory subject for CBSE schools across the country is one of the step जिससे कि हिंदी का प्रेवलेंस बढ़ता जा रहा है हमारे देश में. Re-lettering milestones on national highways in Hindi instead of English. Use of Hindi in airport announcements. Central government issuing media advertisements in Hindi. And finally, launching promotional campaigns exclusively in the Hindi script by the government of India or any government from the northern Indian belt. Alright, so these are some of the examples जिससे हमें ये पता चलता है कि हिंदी का जो प्रेवलेंस है वो हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? व्हाट इज़ द इशू? अगर हिंदी का प्रेवलेंस बढ़ रहा है तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि वी डू नॉट हैव वन नेशनल लैंग्वेज इन दी कंट्री. हमारा कोई एक नेशनल लैंग्वेज नहीं है. 2011 के सेंसस के हिसाब से there are 1369 mother tongues in the country and Hindi is only one among them. ठीक है, so we cannot say and we cannot put Hindi as the national language of the country. And not only this, Article 343 of the Constitution of India mentions Hindi and English as the official languages and not the national languages. Article 343 कहता है कि हिंदी और इंग्लिश ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है. ठीक है, हिंदी, आई एग्री, is the mother tongue of some 50% of our population. However, it is not the mother tongue of the rest of us. अगर 50% population का हिंदी मदर टंग है तो बाकी 50% का क्या? उनके ऊपर भी तो गवर्नमेंट को ध्यान देना पड़ेगा. अगर गवर्नमेंट सर्विस, इंफॉर्मेशन और सपोर्ट, ये जो है ये सारी चीज, जो जितनी भी गवर्नमेंट सर्विस है, गवर्नमेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है या सपोर्ट है, ऑल दीज थिंग्स आर नेसेसरी फॉर ऑल ऑफ अस एंड नॉट ओनली फॉर हिंदी स्पीकिंग पीपल. तो अगर कोई स्कीम या कोई प्रोग्राम या कोई सपोर्ट मैकेनिज्म सिर्फ हिंदी में होगा तो वो नॉन हिंदी स्पीकिंग पीपल के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा समझना. ऑलराइट, इसके अलावा एक इशू ये है कि अगर हिंदी को पूरी तरीके से अप्लाई कर दिया जाएगा तो इट विल रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट मशीनरी. हाउ? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई तमिलनाडु का ब्यूरोक्रेट होगा एंड ही वुड हैव टू रीड ऑल द गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स इन हिंदी, then he or she will face too many difficulties in that और इससे उसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो सकती है. एंड इसके अलावा वन नेशन वन लैंग्वेज इज नॉट एन इंडियन आइडिया, इट इज़ अ यूरोपियन आइडिया. जबकि इंडिया जो है इट ऑलवेज बिलीव इन यूनिटी इन डाइवर्सिटी. तो जब हम यूनिटी एंड डाइवर्सिटी की बात करते हैं देन हाउ कैन वी मेक हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज. ऑलराइट, एंड फाइनली वन लिंक लैंग्वेज, वेदर हिंदी और इंग्लिश, चाहे वो कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी हो या इंग्लिश हो, it will definitely slow down the migration and reduce the ease of capital flow and thereby it will prove to be a dent on India's economy. ये इंडिया को इकोनॉमिकली भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट करेगा. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज कि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते बिकॉज इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास रिच हेरिटेज है, रिच कल्चर है. तो इतनी कल्चरल डाइवर्सिटी के बावजूद जो कि हमारा
एसेंस है हमारे देश का, उसके बावजूद हम हिंदी को, किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को, एंड नॉट ओनली हिंदी, हम केवल हिंदी की बात नहीं कर रहे हैं, किसी भी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को हम एक नेशनल लैंग्वेज नहीं बना सकते। ऑलराइट, नाउ व्हाट्स आर सम ऑफ दी सॉल्यूशंस, क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके पीछे? तो सबसे पहले जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला रिकमेंड किया था कोठारी कमीशन ने, उसको अप्लाई किया जा सकता है, जिसके अकॉर्डिंग हिंदी शुड बी इंट्रोड्यूस्ड इन नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स फ्रॉम एन अर्ली स्टेज। अर्ली स्टेज की बात हो रही है, ये नहीं कि एकदम से हिंदी को एप्लीकेबल कर दिया गया वहाँ पे। शुरुआत से अगर स्कूल करिकुलम में हिंदी को लगा दिया जाएगा तो जो स्टूडेंट्स हैं, जो छोटे बच्चे हैं, वो हिंदी सीख पाएंगे, जिससे कि एक यूनिफॉर्मिटी आएगी देश में। एंड द हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स शुड इंट्रोड्यूस अ नॉन हिंदी इंडियन लैंग्वेज, बट ये कभी भी एप्लीकेबल हो नहीं पाया, क्योंकि जो सदर्न स्टेट्स हैं उन्होंने बोला कि भाई हम हिंदी क्यों सीखें, हमें हिंदी सीखने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा जो नॉर्दर्न स्टेट्स है, जो हिंदी बेल्ट है, उन्होंने बोला कि भाई हम कोई भी एक नॉन हिंदी इंडियन लैंग्वेज क्यों सीखें, हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, द गवर्नमेंट कैन यूज़ हिंदी वेयर इट इज़ अंडरस्टूड बट यूज़ इंग्लिश एवरीवेयर सिंस इट ऑल प्लेसेस ऑल इंडियंस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ कंट्री एट एन इक्वल डिसएडवांटेज। अगर हिंदी मान लो, अगर इंग्लिश को हम हर जगह यूज़ करते हैं तो उससे जो डिसएडवांटेज होगा वो सबका बराबर होगा। और मान लेते हैं कि किसी सदर्न स्टेट के पर्सन को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो उसके लिए भी ये डिसएडवांटेज होगा, और अगर किसी नॉर्दर्न स्टेट के पर्सन को इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो उसके लिए भी डिसएडवांटेज होगा। सो बेसिकली इफ़ वी यूज़ इंग्लिश एवरीवेयर सो इट विल प्लेस ऑल द इंडिविजुअल्स एट इक्वल डिसएडवांटेज। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे कोई इक्वलिटी की वायलेशन नहीं हो रही। ठीक है, नाउ आइडियली तो ऐसा होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनको सारी इंडियन लैंग्वेजेस में होना चाहिए, बट इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज इन दैट केस वी वुड हैव टू पब्लिश ऑल द डॉक्यूमेंट्स इन 23 लैंग्वेजेस, 22 विच आर इन 8th शेड्यूल एंड 23rd इज इंग्लिश। ठीक है, 23 की बात क्यों हो रही है, क्योंकि 22 तो हमारे 8th शेड्यूल में है और 23rd इंग्लिश हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई वी हैव चूजन 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस, इंग्लिश एंड हिंदी। और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो क्या कर सकती हैं कि अगर उनके स्टेट में जो दूसरी ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर उस डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई पुट द केस ऑफ तमिलनाडु, तो जो भी उनकी रीजनल लैंग्वेज है उसके अंदर उस किसी भी गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट किया जा सकता है। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द सॉल्यूशंस। नाउ एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा वो ये नहीं आएगा कि हिंदी को नेशनल लैंग्वेज रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, या बेसिकली कभी भी कोई नेगेटिव क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है ना, क्वेश्चन आएगा कि क्या हमें, अगर मान लो कि यही क्वेश्चन आता है कि क्या हमें हिंदी को नेशनल लैंग्वेज रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए, तो उसके अगेंस्ट में या उसके लिए आप ये सारे पॉइंट्स पुट अप कर सकते हो। और ये सिर्फ हिंदी के लिए ही एप्लीकेबल नहीं है, सारे लैंग्वेजेस के लिए एप्लीकेबल है। अगर हम कल को मान लो तेलुगु को सोचना चाहें कि हम तेलुगु को नेशनल लैंग्वेज बना दें तो इट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल बिकॉज इन दैट केस इट विल अफेक्ट द हिंदी स्पीकिंग पीपल। ठीक है, और अगर आज हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाने की बात करेंगे तो इन दैट केस इट विल अफेक्ट दी पीपल फ्रॉम द सदर्न स्टेट्स हु डू नॉट नो हाउ टू स्पीक हिंदी। ठीक है, सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज विद दिस थिंग, बट नाउ द PMI एनालिसिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसमें से क्वेश्चन आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। प्री के लिए तो इट इज़ नॉट रेलेवेंट, बट फॉर मेन्स इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन GS2 गवर्नेंस एंड इंडियन पॉलिटी, दोनों में ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन पॉलिटी में भी गवर्नेंस में भी। एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस, लुकिंग एट द प्रेवलेंस ऑफ हिंदी इन द एंटायर गवर्नमेंट मशीनरी, इज इट एडवाइजेबल टू मेक हिंदी एज लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया? क्या हमें हिंदी को लिंगुआ फ्रैंका बना देना चाहिए भारत का, या उसको नेशनल लैंग्वेज बना देना चाहिए? तो किसी भी लैंग्वेज को हमें नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाना है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस बात की इजाज़त नहीं देता है। ठीक है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कह रहा है कि हमारे पास इंग्लिश और हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है। ठीक है, एंड द स्टेट्स आर फ्री टू डिसाइड देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस एज वेल। ठीक है, तो हाउ कैन वी मेक हिंदी एज द नेशनल लैंग्वेज? एन इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू दैट, डोंट यू थिंक दैट वी शुड हैव अ नेशनल लैंग्वेज व्हेन ऑल द डेवलप्ड नेशन हैव देयर्स? देखो जितने भी डेवलप्ड नेशन है, लाइक फॉर एग्जांपल अगर ये किसी स्पेनिश कंट्री की बात करें तो वहाँ पे स्पेनिश नेशनल लैंग्वेज होगी। ठीक है, या जो लैटिन अमेरिकन कंट्रीज है बेसिकली वहाँ पे जो नेशनल लैंग्वेज है वो स्पेनिश है। ठीक है, या चाइना में कैंटनीज है। ठीक है, और रशिया में रशियन लैंग्वेज बोली जाती है। तो क्या हमें हमारे देश में भी इस पॉलिसी को अप्लाई कर देना चाहिए? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि ये जितने भी देश हैं इनके पास उतनी कल्चरल डाइवर्सिटी नहीं है जितनी कि हमारे पास है। तो उस कल्चरल डाइवर्सिटी को हमें मेंटेन करके रखना है, एंड दैट इज़ वाई वी शुड नॉट मूव टुवर्ड्स मेकिंग हिंदी एज दी नेशनल लैंग्वेज और एनी अदर लैंग्वेज एज दी नेशनल लैंग्वेज, नॉट ओनली हिंदी। ठीक है, हिंदी की बात इसलिए होती है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा डिस्कशन चल रहा है। अभी रिसेंटली हमारे होम मिनिस्टर ने भी बयान दिया था कि हमें हिंदी को प्रिविलेंट कर देना चाहिए पूरे देश में।
तो ऐसा नहीं हो सकता, इट इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि हमें हमारी जो रिच कल्चरल डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट करना हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। एंड इस क्वेश्चन को आंसर कैसे करोगे, तो ये सारी चीज़ें लुकिंग एट द प्रिविलेंस ऑफ हिंदी। देखो सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो कीवर्ड है वो है प्रिविलेंस ऑफ हिंदी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन अबाउट हाउ हिंदी इज प्रिविलेंट इन द कंट्री। तो जो चीज़ें हमने अभी डिस्कस करी हैं, ठीक है, पहली और दूसरी स्लाइड में ये प्रिविलेंस ऑफ हिंदी वाली चीज़, ये सारे पॉइंट्स आपको मेंशन करने हैं और उसके बाद आपको बताना है कि क्यों हिंदी को हमें लिंगुआ फ्रैंका ऑफ इंडिया नहीं बनाना चाहिए। तो हमने सारी रीजंस पढ़ लिया एंड फाइनली यू हैव टू गिव द सॉल्यूशंस एज वेल। बिना सॉल्यूशन के मत छोड़ के आना, कोई फायदा नहीं है फिर आंसर लिखने का, ठीक है। एंड नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल अगेन, इन पैंडेमिक शॉक क्रिटिकल लेसन्स फॉर एमएसएमईज। दिस आर्टिकल गाइज टॉक्स अबाउट जो एमएसएमईज के ऊपर इम्पैक्ट आया था पैंडेमिक का। हाउएवर ये आर्टिकल बहुत बार हिंदू में आ चुका है और बहुत बार डिस्कस हो चुका है अदर ऑन वेरियस अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, बट फिर भी इसकी इंपॉर्टेंस आज भी उतनी ही है जितनी की पहले थी, ठीक है। तो बात करते हैं एमएसएमईज की। सो एमएसएमई गाइज हमारे लिए क्रिटिकल है, क्योंकि हमारे जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अगर हमें अचीव करना है तो उसके लिए एमएसएमईज का स्ट्रेंथन होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। बहुत सारे इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं टू रिवाइव द एमएसएमई सेक्टर, टू स्ट्रेंथन द एमएसएमई सेक्टर, टू मेक देम एफिशिएंट। लेकिन तब भी एमएसएमई सेक्टर के सामने बहुत सारे चैलेंजेस ऑलरेडी थे, जिसको कोविड-19 पैंडेमिक ने और ज़्यादा एक्सपोज कर दिया, जिसने और ज़्यादा बढ़ा दिया, ठीक है ना। तो बात करते हैं क्या क्या चैलेंजेस थे। सो नंबर 1, दिस सेक्टर वॉज अमंग द वर्स्ट हिट ऑन अकाउंट ऑफ द डिमांड एंड सप्लाई शॉक्स। जो डिमांड एंड सप्लाई का जो शॉक था उसका सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि इन लोगों के पास इतना कैपिटल नहीं होता है कि वो ऑलरेडी अपने पास रॉ मटेरियल्स रखें, ठीक है। रॉ मटेरियल स्टोर करने का इनके पास इतना ज़्यादा कैपिटल नहीं होता कि अगर मार्केट में 2 महीने के लिए अगर किसी चीज़ का प्राइस बढ़ गया है ड्यू टू डिमांड एंड सप्लाई शॉक, तो वो अपने प्रोडक्शन को जारी रखें। तो इसका बहुत बड़ा शॉक एमएसएमई सेक्टर के ऊपर लगा। एंड अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट स्टडी बाय द राइटर्स, जिसमें एक सर्वे हुआ था ऑफ 225 स्मॉल फर्म्स लोकेटेड इन एनसीआर इन उत्तराखंड, उसने ये ऑब्जर्व किया दैट अराउंड 90% ऑफ द स्मॉल फर्म्स ऐसी थी हमारे देश में जिनका टर्नओवर जो था डिक्लाइन हुआ था इन द फाइनेंशियल ईयर 21। ऑफ कोर्स होना ही था, ठीक है। अराउंड 53% ऑफ द फर्म्स फेस्ड मोर देन 50% डिक्लाइन इन देयर टर्नओवर। 29% फर्म्स ऐसी थे जिनका बिजनेस बंद हो गया, ठीक है, बिल्कुल ठप पड़ गया। 29% फर्म्स ऐसी थी। 53% ऑफ दी फर्म्स ऐसी थी जिन्होंने देखा कि जो डिमांड में कमी आई है, एंड वाइल अराउंड 36% फेस्ड इलास्टिक सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स, ठीक है। अब उनके पास कई जो हमारे एमएसएमई सेक्टर के लोग थे उन्होंने ये फेस किया कि भाई उनके पास तैयार जो माल है वो पड़ा है, ठीक है, जो रेडी टू मूव प्रोडक्ट है वो पड़ा है, बट उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में। वाइल कई ऐसे सेक्टर्स थे, वो कई ऐसे एमएसएमई ओनर्स थे जिन्होंने ये फेस किया कि अब उनके पास आज की डेट में रॉ मटेरियल्स ही नहीं है ताकि वो अपना प्रोडक्ट डेवलप कर सके टू सेल इन द मार्केट, ठीक है। These firms face a 25% reduction in their employment, particularly in the informal workers segment. All right, and major challenges faced by these firms in their revival. जो रिवाइवल में challenges थे वो क्या थे? Delayed payment issues, reduced demand, lack of financial resources and supply chain disruptions, जो कि हमने ओवरऑल डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। नाउ इसके पीछे जो इनका रिवाइवल था वो ढंग से नहीं हो पा रहा है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि जैसे फॉर एग्जांपल आत्मनिर्भर भारत पैकेज में गवर्नमेंट ने बहुत सारी चीज़ अनाउंस करी थी फॉर रिवाइविंग द एमएसएमईज। लेकिन सवाल ये है कि अगर मान लो कि मैं एक एमएसएमई का ओनर हूँ, मैं कोई एंटरप्राइज चला रहा हूँ, ठीक है, और उस एंटरप्राइज में जो भी प्रोडक्ट मेरे पास बनता है उसकी डिमांड ही नहीं है मार्केट में, तो जो गवर्नमेंट आत्मनिर्भर पैकेज के अंदर मेरे को फाइनेंशियल असिस्टेंस देना चाहती है, उस फाइनेंशियल असिस्टेंस का मैं क्या करूंगा? व्हाट इज द नीड ऑफ दैट फाइनेंशियल असिस्टेंस व्हेन देयर इज नो डिमांड इन द मार्केट ऑफ माय प्रोडक्ट, ठीक है। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द मेजर रीजन। सो बेसिकली ठीक है, आत्मनिर्भर पैकेज में जो गवर्नमेंट ने फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया है दैट इज ऑल्सो रिक्वायर्ड, बट बिफोर दैट द गवर्नमेंट नीड्स टू पुश द डिमांड। जो गवर्नमेंट है उसको डिमांड बढ़ाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करनी पड़ेगी, और इनफैक्ट गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी कोशिशें करी भी हैं ताकि डिमांड को इंक्रीज किया जा सके, ठीक है। बट व्हाट इज द वे अहेड? सो दीज वर सम ऑफ द चैलेंजेस, ठीक है, पर चैलेंजेस पढ़ना ही काफ़ी नहीं है, क्या वे अहेड है? सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा फॉर एमएसएमईज, जिससे कि उनका जो बिजनेस शटडाउन होने से बचाया जा सके और उनका जो रिवाइवल है वो किया जा सके। सो एक मैकेनिज्म होना चाहिए फॉर एमएसएमईज, एक इन फॉर्म ऑफ एनी लेजिस्लेशन और इन फॉर्म ऑफ एनी एक्ट
जिसके थ्रू MSMEs का जो शट डाउन होना है उसको रोका जा सके और उनका जो रिवाइवल है वो किया जा सके. ऑलराइट. सिमिलरली देयर इज अ नीड ऑफ अनसर्टेनिटी कॉर्पस फंड फॉर स्मॉल बिजनेस. एक अनसर्टेनिटी कॉर्पस फंड या यूं कह सकते हो इमरजेंसी फंड होना चाहिए फॉर स्मॉल बिजनेस, जिसको कि यूज किया जा सके टू मीट द फाइनेंशियल नीड्स ऑफ दीज MSMEs जब भी कोई बिजनेस अनसर्टेनिटी आती है मार्केट में. एंड फाइनली वी शुड हैव अ स्मॉल बिजनेस इंश्योरेंस स्कीम, ताकि किसी भी तरीके के जो बिजनेस डिजास्टर है या कोई और अदर नेचुरल डिजास्टर अगर आता है और उस टाइम अगर किसी भी तरीके की कोई बिजनेस अनसर्टेनिटी होती है MSMEs के सामने, तो उनको इंश्योरेंस के थ्रू प्रोटेक्ट किया जा सके. ठीक है. सो दीज आर सम ऑफ द वे अहेड थ्रू विच द रिवाइवल ऑफ MSMEs कैन बी डन. ऑलराइट. सो आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर. एंड नाउ इसके अलावा दो चीजें और है, न्यू टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस अपॉर्चुनिटीज. अब देखो क्या है कि मान लो कि कोई MSME है जो कि कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है X. अब मान लो कि X की डिमांड बिल्कुल खत्म हो गई है मार्केट में, तो MSMEs के पास इतनी एनेबिलिटी होनी चाहिए कि वो X से स्विच करके Y की तरफ जाए जिसकी डिमांड मार्केट में ज़्यादा है. तो न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड कराना भी ज़रूरी है. एंड ऑफकोर्स उनको टेक्नोलॉजी इनेबल करना भी ज़रूरी है ताकि जो उनका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको रिड्यूस किया जा सके. एंड फाइनली द गवर्नमेंट हैज़ टू रन द अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम्स टू मेक MSMEs अवेयर ऑफ द वेलफेयर प्रोग्राम्स विच आर बीइंग रन बाय द गवर्नमेंट फॉर देम. ठीक है ना. अब मान लो कि मैं MSME चला रहा हूँ और गवर्नमेंट मेरे लिए कुछ करना चाह रही है और कर रही है, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, बहुत सारे स्कीम्स हैं जो कि MSMEs के लिए चला रखे हैं. बट अगर मुझे उस प्रोग्राम की, उस स्कीम की जानकारी नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है, देन व्हाट इज द यूज ऑफ दैट प्रोग्राम. सो इन दैट केस गवर्नमेंट को अवेयरनेस जनरेशन प्रोग्राम रन करने पड़ेंगे ताकि सारे MSMEs को जो भी स्कीम्स और प्रोग्राम है उसका बेनिफिट दिया जा सके. ऑलराइट. So this was about this article. I hope this article is clear. And now the PMI analysis. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें बन सकता है. And प्री के लिए it is not relevant, but for mains it is very very important in GS3 economy. Economy में इसका काफी ज़्यादा स्कोप है. Now question can be like this. Despite many initiatives by governments since independence, MSME sector has been facing challenges in its quest for survival and growth, which further enhanced by the pandemic. नाउ इसमें सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए हैं. ठीक है. और फिर उसके बाद आपको बताना पड़ेगा, देखो क्योंकि इसके अंदर क्या क्या है, डिस्पाइट मैनी इनिशिएटिव्स बाय गवर्नमेंट्स, तो इनिशिएटिव बाय गवर्नमेंट आपको बताने पड़ेंगे. फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली डेफिनेशन चेंज की गई थी MSMEs की ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एंटरप्राइजेस को MSME के डेफिनेशन में लाया जा सके. उसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज में बहुत सारी स्कीम्स गवर्नमेंट ने लॉन्च की थी जिसके थ्रू बहुत सारा फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया गया था MSMEs को. सो ऑल दीज इनिशिएटिव्स कैन बी मेंशन्ड. ठीक है. इसके अलावा जो इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है MSMEs के लिए उसके बारे में मेंशन किया जा सकता है. ठीक है. सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड. और उसके बाद तब आपको बताने कि डिस्पाइट ऑल दीज इनिशिएटिव्स तब भी जो MSME सेक्टर है उसके सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो कि पैंडमिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए हैं. तो आपको बेसिकली इसमें पैंडमिक का जो इम्पैक्ट है वो बताना है on the MSME sector. All right. And finally you have to give the solutions as well. What government can do. इसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है, जो गवर्नमेंट अभी कर रही है उसके अलावा गवर्नमेंट क्या कर सकती है. ठीक है. क्योंकि आप कल को एक IAS ऑफिसर बनोगे तो यू शुड हैव सम आइडिया कि अगर आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उस प्रॉब्लम का सामना कैसे करोगे. ऑलराइट. एंड इंटरव्यू में दे कैन आस्क यू दिस डायरेक्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम ऑफ द इश्यूज रिलेटेड टू MSME सेक्टर ऑफ इंडिया. तो जो भी इश्यूज आप मेंशन कर दोगे जो हमने अभी अभी डिस्कस करे, एंड हाउ कैन वी ओवरकम दोज इश्यूज. तो ओवरकम करने के लिए हमने 3 पॉइंट्स पढ़े थे. ठीक है. एक इंश्योरेंस स्कीम होना चाहिए, एक इमरजेंसी फंड होना चाहिए, एक प्रॉपर मैकेनिज्म होना चाहिए MSMEs के लिए. तो ये 3 पॉइंट्स भी अगर आपने मेंशन कर दिए तो दीज वुड बी मोर देन इनफ. ठीक है. सो इस तरीके से डीपली एग्जामिन करना जरूरी है, PMI एनालिसिस करना जरूरी है आफ्टर रीडिंग एनी आर्टिकल. एंड नाउ अनदर आर्टिकल इज बेस्ड ऑन इंडिया UK रिलेशनशिप. और ये बता रहा है कि डिस्पाइट जो रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके बावजूद इंडिया और UK का जो रिलेशनशिप है वो भी आगे चल रहा है. ठीक है. उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो उसके बारे में आर्टिकल मेंशन करता है और बहुत ही सुंदर आर्टिकल है. अगर इंडिया UK रिलेशनशिप पे कोई भी क्वेश्चन आया तो जितने पॉइंट्स हम इसमें मेंशन करेंगे बस वो एज इट इज छाप देना पेपर में. ठीक है. सो इंडिया UK पार्टनरशिप के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स इसमें मेंशन है. नंबर 1, देयर इज अ कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप व्हिच वाज साइंड लास्ट ईयर इन द मंथ ऑफ May 2021. And this partnership established a 2030 roadmap for the India-UK relationship. This agreement primarily outlines the partnership plans for the bilateral relationship in various sectors, be it energy, be it IT,
be it education, be it nuclear energy, be it space, etc., and be it other trade. ठीक है ना. सो ये जो एग्रीमेंट है ये आउटलाइन करता है पार्टनरशिप इन वेरियस सेक्टर बिटवीन द टू कंट्रीज. देन दोनों कंट्रीज के बीच में जो इंडो पैसिफिक रीजन का जो टाई है वो काफ़ी ज़्यादा डीप हो चुका है, एंड इट विल डेफिनेटली क्रिएट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रीजन, एंड इट विल ऑल्सो फॉस्टर द सिक्योरिटी इन द रीजन. और ये चाइना को काउंटर करने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है हमारे लिए. साइबर सिक्योरिटी के एरिया में देयर विल बी अ जॉइंट साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट विल बी अनाउंस्ड फ्रॉम बोथ द कंट्रीज, एंड दिस प्रोग्राम इज टू प्रोटेक्ट ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर इन बोथ द कंट्रीज. जो हमारे दोनों कंट्रीज का, इंडिया और यूके का ऑनलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये उसको प्रोटेक्ट करेगा. बेसिकली इट विल वर्क ऑन दी साइबर सिक्योरिटी. ठीक है, ये किसके ऊपर काम करेगा? साइबर सिक्योरिटी के ऊपर काम करेगा. ठीक है, मूविंग अहेड. टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन के एरिया में इंडिया एंड यूके बोथ द कंट्रीज हैव प्लान्ड टू होल्ड द फर्स्ट स्ट्रेटेजिक टेक डायलॉग which will be a ministerial level summit on emerging technologies. ठीक है. Then there is a maritime cooperation between the two countries, and ये जो दो maritime cooperation है दोनों countries के बीच का, ये दोनों के बीच का जो ties है उसको strengthen करेगा. and UK ने announce कर दिया है that the UK will join India's Indo-Pacific Oceans Initiative, and it will become a major partner on maritime security issues in Southeast Asia, basically to counter China. And India is a key strategic partner for UK in the Indo-Pacific, both in the terms of market share and defense. So this is also a very good point which you can use in your mains examination अगर कोई क्वेश्चन आता है इंडिया यूके रिलेशनशिप का. Moving ahead, in the energy sector, the UK has confirmed 70 million pound of British international investment funding to support the usage of renewable energy in India. This much amount will help India in building the renewable energy infrastructure and developing solar power in the country. एंड फाइनली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए नेगोशिएशंस पिछले साल से तैयार हैं, एंड नेगोशिएशन से ये देखा जा रहा है कि जो दोनों ही कंट्रीज हैं दोनों के एम्बिशंस हैं कि यस इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन कर लिया जाए. ऑलराइट, सो गाइज दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स फॉर इंडिया यूके हार्मोनाइज्ड रिलेशनशिप. आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर. एंड अगेन प्रीमेस का कोई रिलेवेंस नहीं है, इंटरनेशनल रिलेशन से क्वेश्चन नहीं आता है, बट मेंस में इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में, नॉट GS3, GS2 इंटरनेशनल रिलेशन में इसका काफ़ी ज़्यादा स्कोप है. एंड द क्वेश्चन कैन बी लाइक दिस: डिस्पाइट द चैलेंज पोज्ड बाय द वॉर, इंडिया यूके रिलेशनशिप हैज़ बीन ऑन एन अपवर्ड ट्रैजेक्टरी. कमेंट अपवर्ड ट्रैजेक्टरी के लिए ये जितने भी पॉइंट्स हमने पढ़े हैं, ऑल दीज पॉइंट्स यू कैन मेंशन इन योर मेंस एग्जाम. ठीक है, और बहुत ही सुंदर पॉइंट है और बहुत ही अलग अलग सेक्टर्स के लिए अलग अलग पॉइंट्स हमने मेंशन कर दिए हैं. लाइक वी हैव मेंशनड अबाउट द टेक्नोलॉजिकल कोलैबोरेशन, मैरीटाइम कोऑपरेशन, साइबर सिक्योरिटी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, एनर्जी सेक्टर, सारे सेक्टर का जो कोऑपरेशन है वो मेंशन है. ठीक है, एंड इंटरव्यू में व्हाट इज द करंट स्टेटस ऑफ इंडिया यूके रिलेशनशिप, तो आप बता सकते हो कि देखो साहब इंडिया यूके रिलेशनशिप में बहुत ही अच्छा अभी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पे नेगोशिएशन चल रही है, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप लास्ट ईयर साइन हुई थी. एनर्जी में यूके ने काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट दिया है इंडिया को. मैरीटाइम कोऑपरेशन के लिए यूके ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इंडिया के जो इंडो पैसिफिक ओशन प्रोग्राम्स है उसमें, और चाइना को काउंटर करने के लिए भी यूके का जो कोलैबोरेशन है इंडिया के साथ वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सो ऑल दीज थिंग्स कैन बी मेंशन्ड इन योर इंटरव्यू. सो आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर एंड द PMI एनालिसिस इज ऑल्सो क्लियर. एंड नाउ लेट्स मूव अहेड टू अनदर आर्टिकल विच इज अबाउट द अमेंडमेंट ऑफ द वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट. सो लोकसभा में बिल पास हुआ था, अमेंडमेंट ऑफ वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन एक्ट. वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन WMD किसको बोलते हैं? 3 कैटेगरी के होते हैं: न्यूक्लियर वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स एंड केमिकल वेपन्स. ऑल दीज 3 कैटेगरीज ऑफ वेपन्स आर नोन एज वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस. ऑलराइट, तो लेट्स डिस्कस दिस आर्टिकल की क्या क्या चीज़ें मेंशन है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो WMD एक्ट था 2005 का, उसका यूज़ क्या था, क्यों पास किया गया था गवर्नमेंट ने? तो 2005 में आया था. पहली बात तो ये है, इट्स प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड एन इंटीग्रेटेड legislation on prohibiting the unlawful activities in relation to the WMDs, their delivery system and related materials, equipment and technologies. WMD का प्रोडक्शन, WMD की डिलीवरी, WMD से रिलेटेड मटीरियल्स, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी, उसमें कोई भी अगर अनलॉफुल एक्टिविटी होती है तो उसको प्रोहिबिट करने के लिए दिस एक्ट वाज इनैक्टेड इन द ईयर 2005. ऑलराइट, and it was enacted to meet the international obligation which was posed by
United Nations Security Council Resolution 1540 of 2004. Do remember this UNSCR 1540. ठीक है, ये नंबर याद रखना, it is very very important. Now what is this UNSCR 1540 by the way? So remember it was adopted in the year 2004 and obviously to address the growing threat of non-state actors gaining access to the WMD material. जो non-state actors के पास चाहे वो मेडिसिन के एरिया में हो या फिर किसी अदर एरिया में हो, अगर उनके पास WMD मटेरियल का एक्सेस जा रहा है नॉन स्टेट एक्टर्स के पास, उसके थ्रेट को कंट्रोल करने के लिए दिस वाज अडॉप्टेड इन द ईयर 2004 बाय ऑल द मेंबर नेशंस. एंड एज पर दिस रेजोल्यूशंस द मेंबर नेशंस वर मैंडेटेड टू टेक एंड इन्फोर्स द इफेक्टिव मेजर्स टू कंट्रोल द प्रोलिफरेशन ऑफ WMD. जो WMD है उसके प्रोलिफरेशन को कंट्रोल करने के लिए जितने भी मेंबर नेशंस हैं उनको इफेक्टिव मेजर्स लेने पड़ेंगे. और इस UNSCR ने 3 ऑब्लिगेशंस लगाए थे ऑन ऑल द मेंबर नेशंस. नंबर 1 is the countries will not provide any form of support to non-state actors which are seeking to acquire WMD and the related materials. The nations will adopt and enforce laws criminalizing the possession and acquisition of such items by non-state actors. And finally, the member nations will adopt and enforce domestic controls over the relevant materials in order to prevent the proliferation of WMD. So these 3 obligations were put by UNSCR. Number 1, the countries will not support them. Number 2, the countries will criminalize the possession and acquisition of WMDs. And number 3, the countries will adopt and enforce the domestic controls over the relevant materials related to WMDs. Alright. Now what is the amendment? अब ये जो amendment हो रहा है अभी उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं. So number 1, the amendment expands the scope to include prohibition of financing of any activity related to WMD. So basically not only the possession of WMD. अब क्या होगा कि अगर आप कोई किसी भी WMD के लिए अगर आप फाइनेंस करते हुए भी पकड़े जाते हो देन दैट वुड ऑल्सो बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर द WMD एक्ट. ठीक है. एंड टू प्रिवेंट सच फाइनेंसिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल हैव द पावर टू फ्रीज, सीज और अटैच फंड्स, फाइनेंशियल एसेट्स और इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स. जो भी सस्पेक्टेड इंडिविजुअल्स होंगे उनके फंड्स को, उनके जो प्रॉपर्टी है उसको फ्रीज कर लिया जाएगा, सीज कर लिया जाएगा. जो भी फाइनेंशियल एसेट्स होंगे या इकोनॉमिक रिसोर्सेज होंगी उनको अटैच कर लेगी गवर्नमेंट अगर फाइनेंसिंग करता हुआ कोई पाया जाता है तो. ठीक है. सो दिस इज द अमेंडमेंट. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग कि अमेंडमेंट करने की जरूरत क्या है. अमेंडमेंट करने की जरूरत यह है, दिस अमेंडमेंट अलाइंस विद इंटरनेशनल बेंचमार्क्स एज द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स हैव एक्सपेंडेड द स्कोप ऑफ टारगेटिंग द फाइनेंशियल सैंक्शंस एंड डिमांडेड टाइटर कंट्रोल्स ऑन दी फाइनेंसिंग ऑफ WMD एक्टिविटीज. अब देखो FATF क्या करता है, वो जो टेरर फाइनेंसिंग है उसको रोकने का काम करता है. अब टेरर फाइनेंसिंग को रोकने का अगर वो काम कर रहा है तो मान लो कि अगर मैं हूं और मैं किसी WMD एक्टिविटी, WMD रिलेटेड मटेरियल को फाइनेंस करता हूं, सो आई वुड ऑल्सो बी लाइबल टू पनिशमेंट अंडर दी ऑब्लिगेशंस पुट बाय FATF. तो इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, ताकि जो हमारे इंटरनेशनल बेंचमार्क्स हैं उसके साथ हमारा ये अलाइनमेंट हो हमारे एक्ट का, उसके लिए ये अमेंडमेंट लाया गया है. एंड ऑल्सो विद एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजीज न्यू काइंड्स ऑफ थ्रेट्स हैव इमर्ज्ड दैट वर नॉट सफिशिएंटली केटर्ड फॉर इन द एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशन. ऑलराइट. सो दैट इज द नीड फॉर अमेंडमेंट. नाउ इसका कुछ इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस भी है. यस, इसका इंटरनेशनल सिग्निफिकेंस है. इफ यू वांट टू प्रिवेंट द एक्ट ऑफ टेररिज्म दैट इन्वॉल्व WMD और देयर डिलीवरी ऑफ सिस्टम्स which requires building a network of national and international measures in which all nation states are equally invested. So अगर हमें टेररिज्म को प्रिवेंट करना है जिसके अंदर WMD या फिर उनकी डिलीवरी सिस्टम से रिलेटेड चीज़ें हैं, तो फिर हमें इस एक्ट को, जो इस अमेंडमेंट एक्ट है इसको पास करना, अमेंडमेंट बिल को पास करना पड़ेगा. एंड सच एक्शंस आर नेसेसरी टू स्ट्रेंथन द ग्लोबल एनफोर्समेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स रिलेटिंग टू द एक्सपोर्ट ऑफ सेंसिटिव आइटम्स एंड टू प्रोहिबिट इवन द फाइनेंसिंग ऑफ सच एक्टिविटीज. ऑलराइट. सो आई होप गाइज दिस आर्टिकल इज क्लियर. सो बेसिकली इस आर्टिकल में बात की गई थी WMD एक्ट के बारे में कि इसके अंदर जो अमेंडमेंट आ रहा है वो क्या है, ये एक्ट क्यों बनाया था भारत सरकार ने. तो UNSCR 1540 याद रखना. प्री में स्टेटमेंट आ सकती है. प्री में डायरेक्टली क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट यस प्री में स्टेटमेंट हो सकती है. अगर कोई मान लो WMD से कोई क्वेश्चन आया तो उसमें ये वाली स्टेटमेंट डेफिनेटली होगी, डेफिनेटली. ठीक है ना.
सो प्री के लिए डायरेक्टली इट इज नॉट रिलेवेंट, बट येस यूएनएससीआर 1540, यूएनएससीआर 1540 से रिलेटेड स्टेटमेंट यू कैन फाइंड इन योर प्री, ठीक है। मेंस के लिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, GS2 में ये इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशन में, ठीक है। और GS2 के लिए, GS2 के गवर्नेंस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है। तो आई विल मेक दिस करेक्शन, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। सो क्वेश्चन कैसा आ सकता है, कंट्रोल ओवर WMD इज अ प्री रिक्विजिट कंडीशन टू मेंटेन द ग्लोबल ऑर्डर, डिस्कस। तो इसमें आप सारी चीजें मेंशन करते हो। यू कैन स्टार्ट विद UNSCR ऑफ 1540, UNSCR 1540 से आप स्टार्ट कर सकते हो कि UNSCR 1540 जो है वो 3 ऑब्लिगेशन लगाता है ऑन द मेंबर नेशंस। इसको अडॉप्ट किया गया था 2004 में, ताकि WMD रिलेटेड एक्टिविटीज और उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज पे रोक लगाई जा सके, ठीक है। एंड इंटरव्यू में, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय WMD, इज देयर एनी लेजिस्लेशन इनैक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू कर्ब द मीनेस ऑफ WMDs? सो WMD का आप मतलब बता देना, हमने डिस्कस कर लिया है। और क्या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई लेजिस्लेशन है जिसने कि WMDs को रोकने के लिए काम किया है, ठीक है। सो दिस इज द PMI एनालिसिस, आई होप दिस इज क्लियर। एंड नाउ फाइनली हम सबको पता है दैट शहबाज शरीफ इज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो इस आर्टिकल में बस इंपॉर्टेंट ये है, देखो डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको इतना बता दूं, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इनको कॉन्ग्रेचुलेट किया था ऑन बिकमिंग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बट इन्होंने अपने पहले ही भाषण में ये बोल दिया है कि ठीक है, हमें इंडिया के साथ पीसफुल रिलेशनशिप रखने हैं, लेकिन हमें कश्मीर इशू को सॉल्व करना है। तो ये फिर से इन्होंने अपना जो राग है वो लापना शुरू कर दिया है, बट ऑफकोर्स कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि हमारी भारत सरकार कश्मीर को लेके शुरुआत से फर्म है कि कश्मीर हमारा है और हम नहीं देने वाले, ठीक है। एंड नाउ दिस आर्टिकल गाइज इज इंपॉर्टेंट ओनली फॉर प्री, ठीक है। ये वाला जो आर्टिकल है ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस में इसमें से क्वेश्चन नहीं आ सकता। दिस आर्टिकल टॉक्स अबाउट दी बारबरा फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा, जो कि अब टूरिस्ट के लिए ओपन होने वाला है बहुत जल्द, ठीक है ना, टूरिस्ट के लिए ओपन होने वाला है। तो इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए कि बारबरा फॉरेस्ट कहाँ लोकेटेड है, इसकी क्या खास बात है। तो प्री में से क्वेश्चन बन सकता है इसमें। तो रिमेंबर इट इज लोकेटेड इन खोरदा एंड नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। डू रिमेंबर द नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑल्सो। It is Asia's largest teak and sal forest, which makes it very distinguished from other forest. It is the only forest in India which was guarded by CRPF. तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अकेला फॉरेस्ट है इंडिया में जिसको CRPF ने गार्ड किया था, बिकॉज ऑफ बहुत सारा स्मगलिंग होता था यहाँ पे टीक और साल के लकड़ी का। एंड फाइनली द फोर्थ थिंग विच इज इंपॉर्टेंट अबाउट दिस फॉरेस्ट इज दैट इट इज नेम्ड आफ्टर द वाइफ ऑफ अ ब्रिटिश फॉरेस्ट ऑफिसर who was supposed to have been killed by a tiger in this region, ठीक है। तो ये 4 पॉइंट्स है इस फॉरेस्ट के बारे में, ये याद रखना, दीज आर इंपॉर्टेंट। एंड क्वेश्चन प्री में पूछा जा सकता है आपसे। क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू बारबरा फॉरेस्ट ऑफ उड़ीसा एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट। सो इट इज लोकेटेड इन खोरदा एंड नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा। यस, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टीक एंड साल फॉरेस्ट। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट नहीं है, एशियाज लार्जेस्ट है, तो दिस स्टेटमेंट विल बी इनकरेक्ट। एंड इट इज द ओनली फॉरेस्ट इन इंडिया विच वॉज गार्डेड बाय CRPF, तो ये भी सही है। तो इसमें इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ओनली 1 and 3 आर दी करेक्ट स्टेटमेंट। ऑलराइट, सो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है, याद रखेंगे। इट इज लोकेटेड इन खोरदा एंड नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा, एशियाज लार्जेस्ट टीक एंड साल फॉरेस्ट, ओनली फॉरेस्ट इन इंडिया विच वॉज गार्डेड बाय CRPF, and it is named after a British forest officer who was supposed to have been killed by a tiger. And now finally the last article for today, the State Energy and Climate Index which has been released by नीति आयोग। very important article, काफी ज्यादा important article है। इसका रेलेवेंस प्री में बहुत ज्यादा है, मेंस और इंटरव्यू में उतना नहीं है, प्री में इसका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। तो बात कर लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें हैं इस इंडेक्स में। So remember, this index aims to track the efforts made by the states and UTs in the climate and energy sector, and it is first of its kind index, and it has been released by नीति आयोग. Do remember this? नीति आयोग ने इसको रिलीज किया है। There are 27 indicators, and this index is based on 6 parameters, which are these: DISCOM's performance, access, affordability, and reliability of energy, clean energy initiatives, energy efficiency, environmental sustainability, new initiatives. All right. Now the states are categorized into 3 groups: front runners, achievers, and aspirants. While on the basis of size and geographical differences,
they have been divided into larger states, smaller states and UTs. ठीक है. एंड अगर हम रैंकिंग की बात करें तो among the larger states, the top three states are Gujarat, Kerala and Punjab, and the bottom three are Jharkhand, MP and Chhattisgarh. Chhattisgarh is at the bottom. Among the smaller states, the top three countries are Goa, Tripura and Manipur, while among the UTs, the top three are Chandigarh, Delhi and Dadra and Daman and Diu and Dadra and Nagar Haveli. ठीक है. So do remember all these important facts about this index. This is very very important. प्री में इसमें से क्वेश्चन बन सकता है. नाउ क्वेश्चन इस तरीके से हो सकता है. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू नीति आयोग, स्टेट एनर्जी एंड क्लाइमेट इंडेक्स, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट. So Gujarat is ranked number 1 among larger states. Yes, this is absolutely correct. The index is based on 27 indicators. बिल्कुल सही बात है. And 6 parameters are there. And among UTs, Delhi is at number 1. No, Delhi is not at number 1. It is Chandigarh which is at number 1 among UTs. So this statement is incorrect. Which means the correct answer will be what? Option A, only 1 and 2. Alright. So guys, that's it for today's session. I hope all the articles and their PMI analysis are clear. जहाँ पे pre से relevant सिर्फ होगा, then I will bring to you a question. And main से related होगा, then again I will bring to you a question. और उस question का आंसर नहीं होगा of course, क्योंकि आंसर हम articles के through discuss कर रहे हैं. And if you want to have an all-round preparation for your exam, you can download the Anuj Jindal app from your Google Play Store. And I'll see you in the next session tomorrow. Goodbye, take care, and God bless.